Hello, participants. Warm evening to everyone. Thank you so much for joining us. Hello. I hope that you are using MiraTutor.ai for your kid and the experience has been good so far. Yes, sir. The experience is excellent. My child is really used to it, and it is very handy. So, ma'am, how's your trial going on? What Sir, trial experience? is very nice. The allocated person, your executive, Mr. Ajay, I guess, he's really helpful. And for my child, I can say like even if I travel, it is very handy because you can also operate this from the mobile. And other than that, it is very easy to operate. And due to limitations of question and answer from AI, it is very good that I can leave my child wherever I want or whenever I want, and I'm sure she is not going to come up with such content which I don't want her to see or come across. So this is one thing I liked it very much about your Mera Tutor AI. That's really heartening to know the vision that we have that students can learn on their own and parents can become confident in the ability to help their child learn. I think that's all we need. And with parents like you, we are confident that, we'll achieve that vision throughout India. Yes, absolutely, sir. Thank you so much, Tanviji, for your input. Okay, sir. I hope other parents are going to, have questions and probably you can address few of those now that you are expert on MiraTutor.ai. Not expert, so I myself am still learning. But of course, yes, if there is something which I can help, it would be really good for me. I would be glad to do that, and obviously to participate with such mentors, I would be very happy to do that. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. You all will have a poll on the screen. If you can choose what grade your children or child goes to, that will be helpful for me to conduct this workshop. Okay, I see one grade 7, one grade 8, four grade 5. Okay, a lot of grade 5ers out here. I'm going to launch another poll in which you need to specify what board your child goes to. Okay, we have 3 ICSE, 3 CBSE, and one state board. All right, that is very good information for me. Thank you so much, parents. CBSE, ICSE, IB, state board. All right. I think everyone understands Hindi, तो हिंदी भी यूज कर सकता हूँ मैं. Anybody who does not at all understand Hindi, anybody who is not comfortable with Hindi, मैं हिंदी में बात करूंगा तो चलेगा. All right. All right. Thank you so much. Let's get started. We are going to do this today. Parents workshop for self-paced learning for children grade 5 and above on MiraTutor.ai. All right. उससे पहले a brief introduction to who I am. I am the CEO, co-founder. My name is Soumya Mishra, and I'm a BTech in computer science and an XLRI Jamshedpur alumni. My work experience and work locations are all mentioned in this slide, which is unnecessary to discuss. Let me quickly take you to my inspiration. My son, who is in grade 8, his name is Shivansh, and he goes to a school called Manav Mangal Smart School in Mohali, India. He is in grade 8 CBSE right now, and as a parent, I wanted the best education for him. So, पहले जब मैं यूएस में रहता था तो मैं जल्दी आ जाता था घर. शाम को 5 बजे आई वॉज एट होम. मुझे टाइम होता था कि मैं उसको पढ़ा पाऊँ या फिर गाइड कर पाऊँ. बट इंडिया आने के बाद इंडिया में जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं वो लेट होता है. 8 9 10 बज जाते हैं. तो उसके बाद मुझे भी प्रॉब्लम होती थी कि मैं उसको खुद गाइड नहीं कर पाता था और ट्यूशन में उसको भेजना नहीं चाहता था बिकॉज मेरे को लगता है कि उसमें काफी समय भी वेस्ट होता है. एज अ पेरेंट आपसे अच्छा आपके बच्चे को और कोई भी नहीं समझ सकता और उनको आपसे अच्छा कोई और गाइड नहीं कर सकता. दैट इज द स्कूल ऑफ थॉट फ्रॉम विच आई कम फ्रॉम. मेरे को लगा कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम बना सकते हैं जो बच्चे को तब गाइड कर पाए जब आप जैसे पेरेंट्स या मेरे जैसे पेरेंट्स आर अवे, दे आर इन द ऑफिस, दे आर टूरिंग ट्रैवलिंग, लेकिन बच्चा खुद से पढ़ पाए. राइट, ऐसा कुछ बनाने का मन था. सो दैट इज वाई मैंने मेरा tutor.ai बनाया है. एंड शिवांश हु इज इन ग्रेड 8 इज माई एल्डर सन. ये जो है ये मेरा tutor.ai को पिछले 8 मंथ से यूज कर रहे हैं. उससे पहले मैं उनको पढ़ाता था बट अब अबाउट 8 मंथ से शिवांश इज टोटली अ सेल्फ लर्नर यूजिंग मेरा tutor.ai. एंड अभी उसका एग्जाम चल भी रहा है और आई एम ग्लैड टू रिपोर्ट दैट हार्डली आधा घंटा शायद मेरे को रोज उसको देखना
होता है, और आजकल तो देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से ज्यादा अच्छा उसको मेरा tutor.ai पढ़ा पा रहा है यूजिंग एआई। मैं आपको और भी बताऊंगा कि मैं और क्या क्या करता हूँ, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप भी कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। सो लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई डिड आई बिल्ड miratutor.ai? Because I wanted to make my child good at self learning. The biggest skill in 2025 and going ahead जो होने वाला है वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, वो स्किल नहीं होने वाले। द बिगेस्ट स्किल इज गोइंग टू बी द एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतने स्पीड से चेंज हो रही है कि हमारे बच्चे जो आज पढ़ेंगे कल वो रेलिवेंट होगा या नहीं हमें नहीं पता। लेकिन अगर वो कोई भी चीज खुद से लर्न कर पाए, क्योंकि अभी लर्निंग ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यूट्यूब है, ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, ओपन टेक्स्ट बुक्स हैं, ओपन कोर्सेज हैं इंटरनेट पे, और सबसे बड़ी बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है। तो कोई भी टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, उसमें स्किल्ड होना है, तो वो सारे ऑप्शंस अब अवेलेबल है फ्रीली। तो आगे चल के कंपटीशन इस बात की रहेगी कि कौन कितनी जल्दी एक स्किल को सीख पाता है, और कॉर्पोरेट में वो आज अभी हो रहा है। ये स्किल हमें बच्चों को सिखाना है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू स्पून फीड माय चाइल्ड, क्योंकि उससे उसको आदत लग जाएगी कि पापा पढ़ाएंगे, मम्मी पढ़ाएगी, टीचर पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। रादर मैं चाहता हूं कि वो खुद से मोटिवेटेड हो कोई भी चीज को लर्न करके उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल करने में। इफ पेरेंट्स अग्री टू इट, यू कैन सेंड मी अ थम्स अप, I will know that you are with me. Okay. Also, I always wanted कि मेरे बच्चे के साथ एक गाइड अवेलेबल हो, क्योंकि बच्चे इस एज में ना 12, 13, 8 साल, 9 साल, 16 साल, वो बच्चे होते हैं, और बच्चों को ये जो मोटी मोटी किताबें हम पकड़ा देते हैं उनके लिए काफी चैलेंजिंग होता है। इसीलिए बहुत सालों से बच्चे जाते हैं ट्यूशंस, उनको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है लर्निंग में, क्योंकि स्कूल में आपको पता है एक क्लास में 40-50 बच्चे, टीचर के पास टाइम नहीं, तो पर्सनलाइज लर्निंग हो नहीं पाती। हर बच्चा अपने पेस पे सीखता है, हर बच्चे को कुछ भी अगर लर्न करना है उसका अपना तरीका होता है। तो स्कूल में एक फैक्ट्री मॉडल चलता है, तो वहां पे पर्सनलाइज लर्निंग नहीं हो पाती। सो दैट इज व्हाई आई वांटेड कि मैं अपने बच्चे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं जहां पे उसका हर क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ पाए, और उसके एज एंड ग्रेड एंड करिकुलम के हिसाब से उसको आंसर मिले। सो दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि हमने मेरा tutor.ai बनाया। हम आपको दिखाएंगे कैसे। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू से नो टू ट्यूशन, सब बकवास है, एकदम टाइम वेस्ट है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चे के पास बुक्स हैं और उसको उसका कोर्स पता है, आई कैन गो अहेड एंड से कि उसको स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं। आजकल स्कूल में भी वैसे कुछ नहीं पढ़ाते आजकल, मतलब बहुत रेयर वो स्कूल होते हैं जहां हम कुछ अच्छा सीखते हैं। बट चलो, स्कूल जाना है, दोस्तों से मिलना है, खेलना है, उसके लिए उनको जाना चाहिए। बट अदर देन दैट, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, एवरीबडी रिलाइज ऑन सेल्फ लर्निंग। मैं कुछ ही दिन पहले आई वॉज एट अ बिग इवेंट इन दिल्ली, वहां पे किरण बेदी आई हुई थी। वो बार बार एक ही चीज बता रही थी कि जब शी इज फ्रॉम आईआईटी एंड देन आईपीएस ऑफिसर, प्रिटी डेकोरेटेड ऑफिसर, तो वो बता रही थी कि उनके टाइम पे जब वो स्टडी कर रहे थे, उनके पेरेंट्स, मम्मी एंड डैडी, दे वेयर द गाइडिंग फोर्स, वो उनके फर्स्ट टीचर थे, एंड मैक्सिमम टाइम वो स्पेंड करती थी लाइब्रेरी में। उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था, लाइब्रेरी में थे। तो आप में से भी कुछ पेरेंट्स होंगे जो हो सकता है आपने भी उतना टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड करा होगा। आज वो लाइब्रेरी जो है एक एआई ट्यूटर बॉट के अंदर आ चुका है। हम देखेंगे उसको कैसे यूज करना है। सेइंग नो टू ट्यूशन एंड बिल्डिंग माय चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द स्कूल, क्योंकि दैट इज द की टू हिज फ्यूचर। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना है तो यही टाइम है। ये जो अप टू 16, अप टू 18 जो है वो फॉर्मेटिव ईयर्स होता है। इस टाइम पे उनका जो ब्रेन होता है ना वो फॉर्म होता रहता है। तो इस टाइम पे उनको जितना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा कि बेटा आप अच्छे हो, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर गुड, राइट, यू आर स्मार्ट, तो वो उनके माइंड में फिक्स हो जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। आई कैन से दैट बिकॉज आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट स्टेज where I was winning competition in the school, where I became the topper of my school in grade 10, and I was doing very well all throughout my school because I had a good guardian who took care of me. तो जब मैं फर्स्ट होता था, जब मैं सेकंड होता था, या फिर कोई कंपटीशन जीतता था, तो मुझे लगता था कि आई एम स्मार्ट, एंड यू कैरी दैट कॉन्फिडेंस थ्रू आउट योर लाइफ, एंड दैट इज व्हाट आई वांट एवरी चाइल्ड टू हैव। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
राइट। बट वो कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? वो तो कुछ टॉप 20% या टॉप 10% बच्चों को क्लास में मिलता है, जिनको गाइडेंस मिलती है, जो हाथ उठा पाते हैं, जिनको हर आंसर आता है। उसमें से मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे होते हैं जो हाथ नहीं उठा पाते क्लास में जब टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते। उन बच्चे के माइंड में प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि वी आर नॉट गुड, वी आर नॉट हैविंग व्हाट माय फ्रेंड हु इज रेजिंग हिज हैंड हैज, राइट। तो वो एक कॉम्प्लेक्स फैक्टर आता है बच्चों में। बट कोई भी बच्चा उस सिचुएशन में अपने आप को देखना नहीं चाहता। क्या हम उनको हेल्प कर सकते हैं विथ अ ऑल टाइम अवेलेबल ट्यूटर, सो दैट क्लास में उनका कॉन्फिडेंस, उनका परफॉर्मेंस बढ़े? विल सी हाउ टू डू दैट, या। एंड देन फाइनली आई वांटेड टू प्रोवाइड अ सेफ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्या हम उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा दे सकते हैं जहां पे आप जैसे जो पेरेंट्स हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा बच्चा पता नहीं कंप्यूटर में बैठा तो है, वो ये तो कह रहा है कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन देर इज नो वे यू कैन ट्रैक। क्या कंप्यूटर में बैठ के वो पढ़ाई कर रहा है कि कुछ और कर रहा है, कि उसने यूट्यूब चला दिया, रोब्लॉक्स चला दिया, राइट। या फिर वो फुटबॉल देख रहा है। मेरा बेटा है ना, वो फुटबॉल बहुत देखता है, तो उसको जैसे ही मौका मिलता है ना, वो फुटबॉल देखने लग जाता है। क्रिकेट आजकल के बच्चे नहीं देख रहे हैं। ऐसा कोई पेरेंट है जिनके बच्चे यहाँ पे फुटबॉल बहुत फॉलो करते हैं, रोनाल्डो, मेसी? यू कैन कमेंट ऑन द मैसेज बॉक्स। रोब्लॉक्स बहुत खेलते हैं, राइट, और फिर आके कहे हाँ हमने पढ़ाई कर ली। तो क्या हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां पे हम ट्रैक कर पाए कि हमारा डॉटर है, सन है, उन्होंने अगर बोला कि 2 घंटे मैंने पढ़ाई की है, तो ही इज सेइंग मी द राइट थिंग, ठीक है, तो हम वो भी चेक करेंगे। Alright, so with that, I'll quickly now take you to miratutor.ai, which is a smarter, safer AI personal tutor for grade 5 and above. grade 5 से जो नीचे बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको पेरेंटल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। grade 5 एंड above में थोड़ा बहुत हम उनको सिखा देंगे, वो एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। और AI टूल यूज करना हर बच्चे को आजकल आना चाहिए। चाइना में एज 6 में वो उनको सिखा रहे हैं कि हाउ टू यूज एआई टूल्स। अमेरिका में देयर हैज बीन अ बिल टू ब्रिंग एआई ट्यूटर टू स्कूल। यूएई में ऑलरेडी दे हैव मेड एआई चैट जीपीटी फ्री टू ऑल देयर सिटीजन एंड दे आर ब्रिंगिंग इट इन देयर स्कूल्स। हम वहां पे जाते हैं तो हमें पता चलता है। लेकिन इंडिया में जब मैं स्कूलों के पास पहले जाता था, एंड आई टोल्ड देम यू नो वी हैव दिस वंडरफुल थिंग, इसमें आपको कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी चीजें पढ़ाओ, जैसे भगवत गीता पढ़ा लो, या फिर स्पोर्ट्स में बच्चों को भेजो, एंड बच्चों को सेल्फ लर्न करने दो, आप टेस्ट पे फोकस करो। तो मेजॉरिटी प्रिंसिपल जिनसे मैं मिलता हूँ, वो मेरे को दे डोंट वांट टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी। दैट्स माय फीलिंग, बट आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, एंड दैट्स वेयर आई थॉट कि एज अ पेरेंट अगर मुझे फायदा हो रहा है, कि आई शुड रीच आउट टू मोर पेरेंट्स एंड गिव देम दिस टूल एंड गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू मेक देयर सन्स एंड डॉटर सुपर डॉटर्स एंड सुपर सन्स. That's what we are going to discuss today. All right. With that, I'm going to introduce you to miratutor.ai. तो अभी हम देखेंगे कि miratutor.ai हम यूज कैसे करते हैं। और ये जो मेरा ट्यूटर का अकाउंट मैंने खोला है, ये मेरे बेटे का ही है, इसका नाम शिवांश है। तो ये टॉप कॉर्नर पे शिवांश का नाम आ रहा है। तो हम देखेंगे कि शिवांश मेरा ट्यूटर कैसे पढ़ता है। रिमेंबर ही गोज टू ग्रेड 8 सीबीएसई स्कूल। यहाँ पे काफी लोग सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से हैं, आईबी से कुछ हैं। मोर और लेस सेम रहेगा अप्रोच, क्योंकि देखो पढ़ाई ना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। एक किताब होती है, उसको पढ़ना है, उसमें एक्सरसाइजेस होता है, उसको बार बार करना है, उसी में से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, एंड आपकी पढ़ाई हो जाती है। एटलीस्ट K-12 में तो यही चलता है, ठीक है। वहीं दिक्कत आ जाती है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये डैशबोर्ड को हम ना बाद में चेक करेंगे इसमें क्या चलता है। लेट मी टेक यू टू माई कोर्सेज, ठीक है। माई कोर्सेज में यहाँ पे आई विल ब्रिंग यू टू वन ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज साइंस फॉर ग्रेड 8। ओके, नाउ इफ यू सी, यहाँ पे मैंने ये करा है कि मेरे जो बेटे का स्कूल रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है, उसको मैंने ऑर्गेनाइज करके miratutor.ai में एक बार अपलोड करा हुआ है। नाउ लॉट ऑफ यू विल हैव दिस क्वेश्चन कि पूरा बुक हम अपलोड कैसे करें। इसका आंसर बहुत आसान है। देखिए, सारे स्कूल का ना कोर्स बुक अलग अलग होता है, तो हम कोई एक बुक या एक चैप्टर नहीं दे सकते हैं। सीबीएसई के लिए वी कैन प्रोवाइड द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जो कि फ्रीली अवेलेबल है ऑन द एनसीईआरटी साइट, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम उसको यहाँ अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज आएंगे। बट पेरेंट्स
कैन डू इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साइट से डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। जिन पेरेंट्स के पास स्कूल रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है वो अपने मोबाइल से एडोबी स्कैन या फिर जीनियस स्कैन जैसे फ्री ऐप को यूज करके बहुत आसानी से एक एक चैप्टर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में एंड उसको अपलोड कर सकते हैं। माई टीम कैन गाइड यू इफ यू फेस एनी इश्यूज देयर। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बुक का चैप्टर है इसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम, और ये सीबीएसई के टेक्स्ट बुक से है जो मेरे सन के स्कूल में उसको दिया गया है। तो मैंने उसको इस तरह से अपलोड करा हुआ है। नाउ लेट मी टेल यू नॉर्मली हाउ आई आस्क माई सन टू लर्न यूजिंग मेराट्यूटर.ai। सबसे पहली बात, हम जब बुक पढ़ते हैं, बच्चे को बुक जब पढ़ते हैं वो कहते हैं पापा मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा, तो उस चीज के लिए यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक एआई ट्यूटर बॉट है। ये वाला जो चैट विंडो है वी कॉल इट अ ट्यूटर बॉट। आई टेल यू व्हाई इट इज नॉट अ चैट बॉट, व्हाई इट इज अ ट्यूटर बॉट, हाउ इट इज डिफरेंट देन जेमिनाई या और चैट जीपीटी। तो यहाँ पे हमने बनाया है एक स्निप टूल। इस स्निप टूल को आप यूज कर सकते हैं टू सिलेक्ट एनी पोर्शन ऑफ योर स्कूल रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक या फिर एनी पीडीएफ यू आर अपलोडिंग। तो यहाँ पे जैसे एक एक्सपेरिमेंट है, ट्राई एंड लर्न। सो एज्यूमिंग कि आपके बच्चे को वहां डाउट आया, उसको समझ में नहीं आ रहा है, राइट? तो ऑल ही हैज टू डू इज जस्ट सिलेक्ट दिस पोर्शन लाइक दिस एंड देन उसको यहाँ पे हम कुछ प्रॉम्प्ट्स देते हैं। तो उस प्रॉम्प्ट में जैसे समराइज दिस फॉर मी, सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप, एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स, आंसर इन शॉर्ट, ये सारे प्रॉम्प्ट्स हैं। ऑल्सो नीचे यहाँ पे एक टेक्स्ट विंडो है जहाँ पे आप कस्टम प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी चैट जीपीटी यूज किया हुआ है, तो इट्स गोइंग टू बी सिमिलर टू दैट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं प्रेस करता हूँ एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स एंड आई सेंड इट टू द ट्यूटर बॉट। सो ट्यूटर बॉट क्या करेगा, वो बच्चे का एज को समझेगा, बच्चे के ग्रेड को समझेगा, बच्चे के करिकुलम को समझेगा, बच्चे के स्कूल टेक्स्ट बुक को समझेगा, और इन चारों को मिला के वो एज अप्रोप्रिएट, ग्रेड अप्रोप्रिएट, करिकुलम अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन बच्चे को दे देगा। तो सबसे पहली बात कि एक जो ट्यूटर बॉट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि on the right hand side, hello Shivansh, so Shivansh मेरे बेटे का नाम है, so there's a personalization, right? I can definitely explain the experiment in simple terms. It's really cool way to understand why things burn. वो उसको काफी डिटेल में बच्चे को ये चीज समझा रहा है ना। एक चीज आपने मार्क करा होगा कि जैसे दूसरे एडटेक प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें वीडियोस वगैरह बहुत होते हैं, यहाँ पे वीडियो इज गुड बट देयर हैज बीन रिसर्च कि वीडियो से भी बेटर पढ़ के लर्न करना होता है। वहां पे जो रिकॉल होता है वो बेटर होता है। तो यहाँ पे जो आपके स्कूल के बुक्स हैं वो है, एंड वहां पे अगर कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम या डाउट आता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए राइट हैंड साइड में योर चाइल्ड ऑलवेज हैज अ ट्यूटर। तो वहां पे एक ट्यूटर को रहने की, स्कूल टीचर को होने की या फिर आपके होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमारे पास ये ट्यूटर बॉट है। नाउ नॉट ओनली दैट, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई किया बच्चे के लिए, और नीचे की तरफ वहां पे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। नाउ व्हाट इज रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पे जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा बेस्ड ऑन हिज ग्रेड, करिकुलम, एआई विल रिकमेंड मोर एंड मोर क्वेश्चन टू मेक द चाइल्ड क्यूरियस। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे ये ट्राई एंड लर्न एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करो। तो अभी आप देख सकते हैं कि रिलेटेड सेक्शन में क्या आ रहा है, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर इन योर ओन वर्ड्स, राइट? व्हाट वुड हैपन इफ you used a material that is poor conductor of heat instead of aluminum foil? Now please look at that those questions parents. ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट नहीं है, these questions are asking your child to think, right? They're application based, and ये हमने जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं कि बुक को बस रोट लर्निंग नहीं करनी है, रटना नहीं है, वहां से हम शुरू करेंगे, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि हमारा बच्चा उस नॉलेज को लेके इम्प्लीमेंट कर पाए इन रियल वर्ल्ड, जो कि आजकल आईबी में होता ही है। सीबीएसई में भी इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, जिसको हम हॉट क्वेश्चन कह रहे हैं, वो ऑलरेडी आना शुरू हो गया है, एंड आई एम श्योर आईसीएसई में दे विल फॉलो द सेम पैटर्न, राइट? तो ये जो क्वेश्चन है, लाइक फॉर एग्जांपल, what would happen if you used a material that is poor conductor of heat instead of aluminum foil? अब बच्चे को अगर जानना है, all they have to do is like click on that option and they will get the answer from the tutor bot. Yeah.
अभी तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? आई एम होपफुल। अगर आप मेरे साथ हैं तो प्लीज सेंड मी अ थम्स अप so I can know you are all with me and you are understanding what I'm sharing. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटेड। सो इस तरह से आप देखेंगे, जैसे हमने बच्चे ने वो क्वेश्चन पूछा, उसके नीचे और रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, राइट? लाइक कैन यू नेम अ गुड कंडक्टर, what why it is important for the wax to turn into vapor before it can burn, right? So आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका बच्चा जब स्कूल बुक से पढ़ रहा है, एक तो उसको हमने एक ट्यूटर दे दिया, बट दैट ट्यूटर इज आस्किंग लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस which we want कि उस बच्चे को पता चले, राइट? एंड दैट इज हाउ ही और शी कैन गेट स्मार्टर, एंड वो आप समझ सकते हैं कि वो क्लास से काफी आगे निकल जाएगा। दैट इज नाउ पॉसिबल विथ मेरा ट्यूटर डॉट ए आई। एंड इसीलिए मैंने कहा था कि बच्चों को ट्यूशन जाने की, एक्चुअली स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर मेरा बस चले, टेस्ट में दिलवा दूं घर में बैठा के मेरे बेटे को, बट my wife does not allow me to do that, right? So this is a very cool feature जो आप यूज कर सकते हैं while you are learning. Now not only that, अभी यहाँ पे लेट्स से आपके बच्चे का कल एग्जाम है, राइट? और रिवाइज करना है हमने, तो यहाँ पे यू कैन गो टू द समरी टैब। और समरी टैब में क्या होता है कि पेज, पूरे पेज को पढ़ने के जगह ही और शी कुड यूज द एआई समरी, ओके? तो यहाँ पे जैसे मैं रीजनरेट करता हूं, तो इस पूरे पेज का एक जो मेन पॉइंट्स हैं, राइट, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो की एस्पेक्ट्स हैं, वो आप देखो समराइज होके आ गया। तो इतना बड़ा पेज है, उसका केवल समरी आ गया। तो इससे क्या होगा कि the kid can revise for his exam quickly. It doesn't have to go through the whole thing, right? So AI summary is something that the child can use, but also while the child is learning things from the AI, हो सकता है कि उसको नोट्स लेना हो, जो कि हम लेते हैं। तो यहाँ पे नोट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, जो AI का आउटपुट आता है उसके नीचे नोट का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये नोट का टैब जो है, वहां पे सारे जो एआई के रिस्पॉन्सेज हैं वो सेव हो जाता है। यू कैन सी, सो द रेस्पॉन्स इज सेव्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, हर पेज के नोट उस पेज के साथ स्टोर होते जाते हैं। ये सारी चीजें आपको चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई में नहीं मिलेगा। सो दैट इज वाई I told you that there are a lot of differences that you have to appreciate in miratutor.ai, and why I think that this is the platform that kids should be using, and we'll talk about it more and more. But this is how you are going to use the note section, right? Organized learning के लिए बहुत अच्छा है। Now I'm going to show you few more things. मैं अपने बेटे को कहता हूँ, बेटा आपने चैप्टर पढ़ना है और बैक एक्सरसाइजेस जो है आपके बुक में, वो आपको करना ही करना है। और आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि पापा मेरे से हुआ नहीं, आई नीड योर हेल्प, बिकॉज यू हैव miratutor.ai। तो जैसे कि यहाँ पे एक्सरसाइजेस है, सबको दिख रहा है एक्सरसाइज जो मैं शेयर कर रहा हूँ, एवरीवन एबल टू सी? तो आई यूज द स्निपिंग टूल, एंड यहाँ पे जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो लेट मी सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 4, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाइक दिस, राइट? सो मैं ऑफिस में हूं, मैं फोन करूंगा, मेरे को चाहिए कि तू इसका बैक एक्सरसाइज आज करके रखना, मैं घर आऊंगा, मैं चेक करूंगा, राइट? उसको कोई डाउट होता है, उसके पास मेरा tutor.ai है। इट्स लाइक कि आप घर में बैठे हो, एक बहुत अच्छा टीचर घर में बैठा है जो उसको गाइड कर पाए। आपको बस उसको सिखाना है how to use technology to get better in life, right? To learn on their own self and create self learners. तो यहाँ पे आप देखो, मैंने इसको चूज करा, एंड देन आई एम गोइंग टू से सॉल्व एंड सेंड इट टू द AI tutor bot. So parents, you can see कि हमने उसको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सरसाइज से लेट से बच्चे को डाउट आया, उसने पूछा, इंस्टेंटली उसका एक्सप्लेनेशन आया। बट नॉट ओनली, इसको मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ, मैं एक्सपैंड कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आस्क्ड। यहाँ पे 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, इसने उसका आंसर भी दिया यहाँ पे, जैसे कि सी उसका आंसर है। बट नॉट ओनली कि आंसर दिया,
उसने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि उसका आंसर फ्लेम है, क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन है। नंबर 2 का भी वही है, आंसर इज ऑल ऑफ दीज एंड एक्सप्लेनेशन। सो यू कैन सी कि कोई भी एक अच्छे ट्यूटर से काफी बेटर आउटपुट हमें मेरा ट्यूटर में मिल जाता है। सो बच्चे के पास हमेशा हेल्प रहेगा। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे फिल अप द ब्लैंक्स भी है। अगर हमें चाहिए कि हमें वो पूछना है, फिल अप द ब्लैंक्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, and I am going to say solve and send it to the tutor bot. आपको लगता है कि आप उनको कॉन्फिडेंस के साथ अब गाइड कर पाएंगे? यू कैन सेंड मी अ थम्स अप। सो हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट हमने यहाँ पे फिल अप द ब्लैंक्स पूछा एंड यहाँ पे AI इज एबल टू गिव अस द राइट आंसर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई, राइट? सो नॉट ओनली दैट, यहाँ पे किसी तरह का भी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो हम जनरेट कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ ग्रेट फीचर ऑफ होमी। आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप मेरे को बोलोगे कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट मैं बच्चे का नॉलेज टेस्ट कैसे करूं? वो तो कॉपी करके पास कर जाएगा मेरा ट्यूटर से। देखो, पहली बार ना कॉपी करना अच्छी बात होती है, क्योंकि बच्चे को ना लर्न करना है, राइट? अभी भी ऐसा ही होता है ना कि हम नोट्स लिखाते हैं, बच्चे को आंसर टीचर फर्स्ट टाइम कराती है तो बच्चे उसी से पढ़ते हैं, राइट? सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जब प्रैक्टिस करते हैं उनको समझ में आ जाता है एंड देन दे आर एबल टू डू इट, राइट? सो रेपिटेशन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अगर आप, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे बेटे को कहता हूँ कि मैं ऑफिस से आके टेस्ट लूंगा, तो वो टेस्ट भी लेना आसान नहीं होता। बुक से आपको क्वेश्चन लिखना पड़ता है आज के टाइम, तो वो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे हमारे पास है पीडीएफ ऑप्शन। मैंने नीचे इस पीडीएफ ऑप्शन को ऑन कर दिया और यहाँ पे इसको मैं दूंगा एक प्रॉम्प्ट, ठीक है? सो प्रॉम्प्ट में जैसे सीबीएसई के जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह से प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, मैं आईसीएसई का भी बताऊंगा, आईबी का भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा आई वांट यू टू जनरेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड on the exercise of this chapter. Format the questions as per CBSE exam format. I want 20 क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्सिटी विल बी मीडियम या फिर हार्ड या फिर इजी। तो अभी देखते हैं क्या होगा। तो अभी हमने इसको ट्यूटर बॉट को भेज दिया, ये जो प्रॉम्प्ट है। अगर जो पेरेंट्स हमारे मेरा ट्यूटर सपोर्ट ग्रुप में है व्हाट्सएप में, तो उनको आई एम ट्राइंग कि मैं रोज उनको ये जो प्रॉम्प्ट मैं यूज करता हूँ अपने बेटे के लिए, मैं उनको भी भेजता हूँ। सो आज भी मैंने प्रॉम्प्ट भेजा, परसों भी शायद रात को मैंने प्रॉम्प्ट भेजा। तो ये प्रॉम्प्ट आपको मैं भेजता रहूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉम्प्ट हमने यूज करना है मेरा ट्यूटर डॉट AI में। सो अभी मैं आपको इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि नाउ लुक, दिस इज ऑसम। मैंने 20 क्वेश्चन मांगे थे AI से। सो वी हैव 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंबशन एंड फ्लेम, फॉर्मेटेड एज पर सीबीएसई पैटर्न एंड डिजाइन फॉर मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब अगर आईसीएसई के लिए चाहिए तो आपने बोलना है फॉर्मेटेड एज पर आईसीएसई एग्जाम। आईबी के लिए आईबी, यू विल गेट questions and you will be surprised at the quality। ठीक है, so you can do that। so you can see that जैसे सीबीएसई में आता है उस तरह से मल्टीपल चॉइस पहले आता है। there are 5 multiple choice, there are fill up the blanks, true or false, very short, short answer question, long answer question, assertion type question, सारा दे दिया। और आपने अब क्या करना है, इसको ऐड करना है नोट में। और आपने नोट में जाना है तो आप ये देख सकते हो कि जो पूरा क्वेश्चन पेपर है अब नोट में आ गया। एंड यहाँ पे आप नोट को एक्सपोर्ट कर सकते हो लाइक दिस। और जब आप एक्सपोर्ट करोगे, एंड लेट मी शो इट टू यू, हमने इसको एक्सपोर्ट करा और इस तरह से ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। आपके घर में अगर प्रिंटर है, ऑफिस में प्रिंटर है, आप इसको प्रिंट कर लीजिए एंड बच्चे को दे दीजिए। सो जो लर्निंग है दैट विल हैपन ऑन मेरा ट्यूटर डॉट AI, बट जो टेस्ट आपने लेना है एज अ पेरेंट, वो आपने इस तरह से लेना है। उनको बोलो कंप्यूटर बंद एंड यू टेक दिस क्वेश्चन पेपर एंड यू गेट स्टार्टेड। तब आपको पता चलेगा कि हाउ उसकी लर्निंग कैसे चल रही है। अब आप मेरे को पूछोगे कि क्वेश्चन तो आ गया, आंसर का क्या? तो आंसर भी यहां से पॉसिबल है। आप बोलना आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसी विंडो में आप लिख सकते हो आंसर द क्वेश्चंस। उसका जो पूरा आंसर है वो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर किसी पेरेंट को ये लगता है कि मेरा बच्चा ग्रेड 8 में है, आई कैन नॉट टीच हिम, ग्रेड 9 में आई कैन नॉट टीच हिम, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एफर्ट करने हैं। एज अ पेरेंट आपसे ज्यादा अच्छा आपके बच्चों के लिए कोई नहीं सोच सकता। आपने एफर्ट करना है।
और जो आंसर गाइड्स हैं या फिर जो क्वेश्चंस हैं वो सारा आप मेरा ट्यूटर डॉट ए आई से निकाल लो, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ढूंढ रहे हो कौन मेरे बच्चे को पढ़ाएगा, कोई नहीं मिल रहा है। ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं पेरेंट्स के साथ, तो ये नहीं होनी चाहिए। एंड दैट इज वाई मेरा ट्यूटर डॉट ए आई कैन हेल्प यू मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट। जैसे कि ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर अभी बना, इसका पूरा आंसर आप देखो, मल्टीपल चॉइस का आ गया, फिल अप द ब्लैंक्स का आ गया, ट्रू एंड फॉल्स का आ गया। सो यू ऑल्सो हैव द आंसर की, तो आप मैच तो कर ही पाओगे। एंड प्रोबेबली बाय नेक्स्ट मंथ हम लोग एक ऐसा फीचर निकालेंगे जहां पे वर्कबुक आ जाएगा, बच्चा लिखेगा, फॉर्मी में अपलोड करेगा और ऑटो करेक्ट एआई ही कर देगा, आपको वो भी नहीं करना। सो लॉट ऑफ कूल फीचर्स आर गोइंग टू कम ऑन मेरा ट्यूटर डॉट ए आई। वी वॉन्ट टू बिल्ड द बेस्ट ट्यूटर ऐप इन द एंटायर वर्ल्ड एंड वी आर कमिटेड टू दैट। अभी तक जो आपने देखा, आपको अगर पसंद आया हो तो यू कैन लाइक सेंड मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। आई आई होप कि आपको हेल्प मिल रही है, आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि नाउ आप अपने बच्चे को काफी अच्छा गाइड कर पाओगे। सो नाउ लेट मी टेक यू टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, वो है मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 8। मैथमेटिक्स में भी सारी मतलब जो टफ वाला एक है क्वाड्रिलैटरल, वहां लेके चलूंगा। तो ये पूरा आप देख सकते हैं कि ये बुक है उसका। एंड सिमिलरली ये मेरे बेटे ने यहाँ पे एंगेज करा हुआ है, उसने यहाँ पे एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स लिखा हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। व्हाट इज पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है। एंड उसके साथ रिलेटेड सेक्शन में मैं अगर जाता हूँ, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, कैन यू ड्रॉ सिंपल concave polygon, are all regular polygons convex, can a polygon have both convex and concave part, ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं मैं उसको कहता हूँ बेटे आपने ये करना है, क्योंकि यहाँ से आपकी जितने आप क्वेश्चन ज्यादा पूछोगे आप उतना ज्यादा लर्न करोगे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चे मेरा ट्यूटर को किस तरह से यूज कर रहे हैं, एवरेज डेली कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। बट मैथमेटिक्स में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनको डर लगता है। बट जितना वो प्रैक्टिस करेंगे इट्स गोइंग टू हेल्प देम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने चूज करा और मैंने इसको सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप लिखा, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन हमें मिलता है। तो बच्चा उसको देख के फर्स्ट टाइम कर सकता है, जहां पे स्टक करता है क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, मैं आपको दिखाऊंगा। राइट। सो ये देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स का हमने ये क्वेश्चन पूछा एंड होमी इज एबल टू आंसर द होल थिंग एज यू कैन सी, राइट, लाइक दिस, राइट। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प द चाइल्ड। बट व्हाट इफ बच्चे को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो बच्चा पूछ सकता है आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड, राइट, मेक इट सिंपलर टू अंडरस्टैंड। तो बार बार क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। स्कूल में क्या होता है, बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है क्योंकि टीचर एक ही है, इतने बच्चे हैं, तो इतना प्रेशर रहता है कि, और कई बार तो उनको लगता है कि मेरा दोस्त क्या सोचेगा, मुझे नहीं आता। तो बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बच्चे पापा को क्वेश्चन नहीं पूछते हैं क्योंकि पापा तो एकदम ऑफिस से मतलब स्ट्रेस्ड आते हैं, तो पता नहीं पापा गुस्सा ना हो जाए, मम्मी को नहीं पूछेंगे, मम्मी भी स्ट्रेस्ड है। तो ये बच्चों के जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं। लेट अस गिव देम समथिंग जहां पे वो बार बार क्वेश्चन पूछ पाएंगे, नो मैटर हाउ स्टूपिड द क्वेश्चन इज, क्योंकि उसी से लर्निंग होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा, उसको सिंप्लीफाई करके होमी ने फिर से उसको आंसर किया, राइट। तो ये आप कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में भी आप इसी तरह कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं बेस्ड ऑन सीबीएसई, बेस्ड ऑन आईसीएसई, बेस्ड ऑन आईबी। जैसे एक हम आईबी का भी ट्राई करेंगे। देर आर आईबी पेरेंट्स, देर आर आईसीएसई पेरेंट्स, विल ट्राई टू डू दैट। तो आईबी का कोई बुक नहीं होता, कोई भी बुक आप अपलोड कर लो एंड वहां पे आईबी स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स आप दोगे, इट विल वर्क, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स का दिखाया, ये मेरे बच्चे ने यहाँ पे खुद यूज करा हुआ है। उसने ऐसा यहाँ पे एक डाउट पूछा तो मैंने उसका ये आंसर दिया। तो आज के डेट में मुझे उस मैं सिर्फ उससे डिमांड करता हूँ परफॉर्मेंस, बिकॉज ही हैज मेरा ट्यूटर डॉट ए आई। आई जस्ट आस्क हिम कि बेटा आपने अच्छे मार्क्स ला के मुझे देने हैं, एंड आप कब पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे इट इज ऑल अप टू यू, ठीक है। तो कोई कोई बाउंडेशन नहीं है, बट हर बच्चे को हमें ये यही सिखाना है कि आप अपने आप को मैनेज करो। हमें उनको ये कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, उसकी जरूरत नहीं है। रादर उनसे हमें परफॉर्मेंस लेनी है, हमें वो लेना आना चाहिए, ठीक है। सो लेट मी टेक यू क्विकली टू another important subject which is Hindi.
या फिर उससे पहले हम इंग्लिश में आते हैं। तो इंग्लिश में आपको पता है प्रोज होता है, पोइट्री होता है, ग्रामर होता है, और कई वहां पे भी दिक्कतें होती हैं उसको समझने में। तो यहाँ पे जैसे एक प्रोज है, व्हेन विशेस कम ट्रू, आई होप यू कैन सी दिस, ये भी मेरे बच्चे का स्कूल रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है। तो यहाँ पे एक स्टोरी है, उसको पढ़ के बहुत बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो इंग्लिश में अब एआई को अगर मैं यहाँ पूछूं, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर अपील्ड टू यू मोस्ट, राइट अ पैराग्राफ स्टेटिंग वाई, ये क्वेश्चन है। अब इसके लिए एआई को पता होना चाहिए ना कि स्टोरी क्या है, उसको उसको पढ़ना चाहिए पहले, तभी ना वो हमें पढ़ाएगा। तो यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन है। तो जैसे प्रोज, पोएट्री, उन उन सब्जेक्ट्स के लिए आपको यू शुड टर्न ऑन द पीडीएफ ऑप्शन, एंड वंस यू टर्न ऑन द पीडीएफ ऑप्शन, द एआई विल be able to understand the poem. The whole PDF will be uploaded to the AI, right? अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको पूछेंगे, what which of the following character appeal to you the most, write a paragraph and why। तो हम इसको चूज करेंगे, and we are going to say answer and send it to the AI। सो बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाने में अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा ट्यूटर डॉट ए आई में यू विल सी what level and what kind of answer it is going to provide। अगर आपको गाइड करना है, आपको भी हेल्प मिलेगी, बच्चे को भी मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा आंसर मिलता है, टू हेल्प यू डिसाइड विच कैरेक्टर अपील्ड यू टू द मोस्ट, लेट्स कंसिडर अ फ्यू थिंग्स। और इस तरह से वो पूरा प्रोज स्पेसिफिक आंसर दे रहा है, क्योंकि उसको कॉन्टेक्स्ट सेट है। यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स, व्हाई डिड सुबल इच टू पनिश सुशील। तो यहाँ पे भी अगर मैं इसको करता हूँ और मैं इसको करता हूँ आंसर एंड सेंड इट टू द एआई, इट विल बी एबल टू आंसर द होल थिंग। नॉट ओनली दिस, मैं आपको और बहुत सारी चीजें हैं जो आप इंग्लिश स्पेसिफिक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ रहा है, एंड अगेन क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि हम और किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, देर आर मेनी वेज। मैं आपको, अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ऑन द सपोर्ट चैनल ऑन व्हाट्सएप। आई बी सेंडिंग यू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यहाँ पे इफ आई गो टू अगेन इंग्लिश लिटरेचर, एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा, डैफोडिल्स करके एक पोएम है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूछा हुआ है, हेल्प मी प्रिपेयर फॉर अ स्पेलिंग टेस्ट, प्रोवाइड मी द वर्ड्स टू प्रैक्टिस फॉर दिस चैप्टर। तो मेरे बेटे का ना स्पेलिंग टेस्ट होने वाला था स्कूल में। तो इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग थ्रू द होल बुक एंड अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट स्पेलिंग, मैंने यहाँ मेरा ट्यूटर डॉट ए आई से पूछा कि आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स का एक लिस्ट जनरेट कर दो, विच माई सन कैन लर्न एंड गो फॉर हिज टेस्ट। उस टेस्ट में उसके 19.5 आए 20 से, बट दिस इज हाउ वी डू इट, हियर आर 15 वर्ड्स टू प्रैक्टिस। तो वो स्पेलिंग टेस्ट का सारा वर्ड हमें मेरा ट्यूटर डॉट ए आई से मिल गया, राइट। ऑल्सो एक्ट एज ए इंग्लिश ट्यूटर, हाउ कैन यू हेल्प मी विद दिस चैप्टर। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कैसे मेरा ट्यूटर को यूज करना है, आप उसी से पूछ लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द पोएम, इट कैन हेल्प यू विद लिटरेरी डिवाइसेस, कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, राइटिंग, प्रिपरेशन फॉर टेस्ट। ये सारे यूज केसेस हैं जो आप मेरा ट्यूटर डॉट ए आई इंग्लिश में कर सकते हैं। हेल्प मी लर्न अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ, मैंने उसको बोला, तो उसने पूरा फर्स्ट पैराग्राफ को देखो लाइन बाय लाइन समझाया हुआ है। इतना डिटेल में कौन समझाता है। एंड यू सेंड योर चाइल्ड टू एनी प्लेस, इस लेवल का क्वालिटी एजुकेशन घर में बैठ के जो मेरा ट्यूटर के थ्रू उसको मिल रहा है, वो और कहीं नहीं मिल सकता। सो दिस इज वाई आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर योर चाइल्ड। ऑल्सो यहाँ पे ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि हिंदी एक चैलेंज बन गया है आजकल के बच्चों के लिए, उनको हिंदी पढ़ने का मन नहीं करता, वो इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है। ऐसा कोई पेरेंट्स है, या फिर मेरा ही बेटा ऐसा है? एनीवन, यू कैन टाइप ऑन द विंडो। सो सो आई विल गो टू हिंदी ग्रामर फॉर ग्रेड 8। तो यहाँ पे जैसे मैं संज्ञा पे जाता हूँ, तो संज्ञा में ये जातिवाचक, या फिर लेट मी कम टू अ कॉन्सेप्ट। जैसे हम संज्ञा में जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं पूछता हूँ कि ये मैंने सिलेक्ट करा और मैंने मेरा ट्यूटर से पूछा एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि हिंदी एंड इंग्लिश में वो कॉन्सेप्ट को समझा देता है, जो कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा इजी हो जाता है समझना।
तो यू कैन सी कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे इन सिंपल टर्म्स नाउन ब्रैकेट में संज्ञा इज द वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन प्लेस थिंग। तो बेसिकली हिंदी हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम इसको इंग्लिश में समझ रहे हैं। सर मराठी हमें ट्राई करना पड़ेगा या फिर संस्कृत मेरे को देखना पड़ेगा, ये चलना चाहिए। हम डाल के ट्राई कर सकते हैं, मराठी और संस्कृत चलना चाहिए। वी कैन ट्राई दैट। ये सारे इंडियन लैंग्वेज मोस्टली शुड बी हैंडल्ड। तो इसमें आई विल शो यू मोर थिंग्स। तो ये देखिए ये सारे हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में आ रहा है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को हिंदी में ही पढ़ना है, तो यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हैं। कन्नडा है, गुजराती है, बंगाली, असमी है, तमिल है। यू कैन, जैसे हमने यहाँ पे हिंदी को करा, तो यहाँ पे जैसे मैंने अब सिलेक्ट किया व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसको मैं कहता हूँ एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स। तो अब आप देखेंगे जो आउटपुट आएगा वो कंप्लीट हिंदी में आएगा, मोस्टली हिंदी में आएगा। हिंदी बिकम्स द प्राइमरी आउटपुट लैंग्वेज। तो अगर यहाँ पे ऐसे कोई पेरेंट्स हैं जो कि हिंदी या फिर लोकल लैंग्वेज में ज्यादा कॉन्फिडेंट है कंपेयर टू इंग्लिश, आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट बोर्ड आप उनके लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट आता है वो एकदम हिंदी में है, और कहीं कहीं इंग्लिश है जहाँ पे उसको करना चाहिए। और यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन भी हिंदी में आ रहा है, अगर आप उस पर भी क्लिक करते हो उसका आउटपुट जो है वो हिंदी में आएगा इस तरह से। नाउ क्विकली आई एम गोइंग टू चेंज द लैंग्वेज बैक टू इंग्लिश। और मैंने आपको सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हैं वो अभी तक नहीं दिखाया है। आई वुड रश एंड शो यू दैट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस गो टू ज्योग्राफी, या फिर ओके ज्योग्राफी को चलते हैं। और ज्योग्राफी में हम चलते हैं लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज में। ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते मेरे को दिख गया यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट विच इज ड्रिप इरिगेशन। ओके, अब बच्चे को पता ही नहीं चलेगा ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, कैसे उसको विजुअलाइज करेगा, राइट। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत अच्छा होने वाला है। सो इफ आई क्लिक ऑन इमेज सर्च, यहाँ पे हमारे पास एक फीचर है इमेज सर्च, तो हम वहां पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रिप इरिगेशन, एंड हम इसको ट्यूटर बॉट को भेज देंगे। एंड अभी आप देखो क्या होगा, अभी इमेजेस आ जाते हैं जो आप इमेज सर्च करना चाहते हैं। जैसे हमने अभी बच्चे को दिखाना है ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। कई बार होता है ना, आप में से अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा आपको पूछता है पापा ये कैसे दिखता है, मम्मी ये कैसा दिखता है, राइट। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, हम गूगल जाते हैं, वहां से कुछ सर्च करके बच्चे को दिखाते हैं। बट अब वो करने की जरूरत नहीं है, सेम एप्लीकेशन के अंदर आप ये काम कर सकते हैं जैसे मैंने करा। आई कैन डू अ वेब सर्च एंड इफ आई क्लिक ऑन सी ऑल इमेजेस, ये आपको दिखाएगा कि ड्रिप इरिगेशन इस तरह से होता है। ये प्लांट्स लगे हुए हैं और इस तरह से ये ड्रिप्स लगे हुए हैं, राइट। तो दिस इज हाउ मेरा ट्यूटर डॉट ए आई नॉट ओनली टीचेज यू, इट ऑल्सो शोज यू हाउ थिंग्स वर्क बाय शोइंग यू द पिक्चर्स, जिससे बच्चा विजुअलाइज कर पाए। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आप इनको नोट्स में भी ऐड कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। बट अब बच्चा बोलेगा कि आई नीड टू सी हाउ इट वर्क्स, राइट। तो उसमें भी हमारे पास ऑप्शन है। आपने इमेज सर्च पे क्लिक किया था, अभी आप क्लिक करें वीडियो सर्च पे, तो वीडियो सर्च का भी ऑप्शन है जहां पे सेफ अंडर 18 वीडियोस हम सेम प्लेटफॉर्म में बच्चे को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे ड्रिप इरिगेशन, और मैंने इसको ट्यूटर बॉट को भेज दिया। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वीडियो आते हैं, और इस वीडियो में हमें जितने भी वीडियोस हैं ड्रिप इरिगेशन के वो हमें दिखने लगते हैं, राइट। तो ये सारे यूट्यूब से ही आ रहे हैं, लेकिन ये सारे सेफ वीडियोस हैं, क्योंकि कई बार यूट्यूब में ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जो बच्चे को एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो ये तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो इस तरह से खुद पढ़ सकता है, सीख भी सकता है यूट्यूब के वीडियो से ऑन मेरा ट्यूटर डॉट ए आई। इसके फायदे क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट नॉट ओनली दैट, नाउ आई वांट टू सी कि ड्रिप इरिगेशन के बारे में पढ़ा, बट मुझे ये जानना है कि इंडिया में ड्रिप इरिगेशन कौन कौन से स्टेट्स में यूज हो रहा है आज के डेट में। तो उसके लिए हमें वेब सर्च करना पड़ेगा,
तो आप क्लिक कर सकते हैं वेब सर्च के ऊपर और आपको कोई भी डेटा जो जानना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि which states in India are using drip irrigation in 2025. So now what is going to happen is Mera Tutor is going to search the web and bring the most relevant data and show it to the child. जो IB में है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनको काफी रिसर्च करना होता है इन अ सेफ वे। वो ये रिसर्च ऑन मेरा ट्यूटर डॉट ए आई कर सकते हैं। कोई भी बच्चा जो बुक से कुछ पढ़ा और उसको जानना है कि आजकल क्या हो रहा है, रिसेंट डेटा, तो वो रिसेंट डेटा आप इस तरह से उनको सेफली अवेलेबल कर सकते हैं ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। नाउ हियर यू कैन सी कि ड्रिप इरिगेशन के बारे में वो कह रहा है कि नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है, फिर गुजरात है, and this is the entire list, right? So that is how we are making education safe, जहाँ पे the child can get the best videos, the best images, the best data all inside miratutor.ai alongside the school recommended textbook. There's one last thing that I want to tell you about, and it is also going to be very interesting. Let me go to this assessment zone, and यहाँ पे एक क्वेश्चन है, which of these factors is not responsible for land degradation, या फिर कोई भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं ऑन करूंगा कोच मोड। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। द कोच मोड में क्या होता है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू मेरा ट्यूटर। अभी तक क्वेश्चन के आंसर जो है वो डायरेक्ट आ रहे थे, बट यहाँ पे यू विल नोटिस अ डिफरेंस। अभी आप इसका जो आंसर है मेरा ट्यूटर का वो आप चेक करें। आई होप एवरीबडी इज विथ मी एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे यू कैन सी कि हमने ये क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा ट्यूटर जो है इट इज asking us question, not giving me direct answer. Like, thank you for providing the new question. It looks like we are shifted from land degrader. So the new question is, which of the following is not responsible for soil formation? And now it is playing a quiz with me. जैसे कि these are the option, which one it's asking me, आपको क्या लगता है? So I'm going to say A, और यहाँ पे मैं आंसर दूंगा A. And you can see that यहाँ पे क्या हुआ, that's an interesting thought, choosing hummus, let's explore a bit more. तो यहाँ पे ये आप खुद एक्सप्लोर करिए, but what I'm trying to tell you is यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन चलता है बिटवीन द स्टूडेंट एंड द ट्यूटर। यहाँ पे ट्यूटर जो है वो डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, और जब आप डायरेक्ट आंसर नहीं देते हो एंड आप फोर्स करते हो स्टूडेंट टू थिंक, टू क्रिटिकली थिंक, उसकी नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ती है। दिस मेथड इज कॉल्ड सोक्रेटिक लर्निंग, एंड इसको हमने इंप्लीमेंट किया है मेरा ट्यूटर डॉट ए आई में। इसको हम कोच मोड कहते हैं। आप बच्चे को जरूर ट्राई कराना, कोई भी चीज एक क्वेश्चन पूछ लेना और उसको बोलना कोच मोड एनेबल कर दे, तो क्वेश्चन और आंसर से बच्चा काफी ज्यादा सीखेगा कंपेयर टू डायरेक्टली गेटिंग आंसर। इसको दिस इज द रिकमेंडेड अप्रोच टू लर्न एनीथिंग। Please do use it. I hope you liked this method. Now I'll quickly ask few questions to Homi, like tell me who is the best actor of 2025 in Bollywood। होता है ना, बच्चे शरारत करते हैं, इस उम्र में हो ही जाता है, हमने भी किया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जब ट्यूटर बोर्ड को जाता है, टेल मी हु इज द बेस्ट एक्टर ऑफ 2025 इन बॉलीवुड, आई वुड वांट टू शो यू कि मेरा ट्यूटर का रिस्पॉन्स क्या है। यू कैन सी द रिस्पॉन्स मे बी ऑफ टॉपिक फ्रॉम द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये सेम चीज अगर आप जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी में पूछोगे तो वहां पे वो आंसर दे देगा, ये आप ट्राई कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि बेटा आपने लैंड सॉइल एंड वाटर पढ़ना है तो वही पढ़ो, ये फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, ठीक है। तो जब आप बच्चे को होमी देते हो, मेरा ट्यूटर देते हो, और उन्हें कहते हो कि आपको इस पे पढ़ना है, तो आपको पता है कि वो उस पे वही पढ़ सकता है और कुछ कर ही नहीं सकता। ना बकवास वीडियो आएंगे, ना बकवास चैट वो कर पाएंगे, ना वो वीडियो देख पाएंगे फालतू के। तो आपको पता है वो जो भी कर रहा है वो
सेफली कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। प्लीज हमारे साथ बने रहिए एंड आई विल शो यू। सो हियर लेट मी आस्क इट अ बिट मोर डेंजरस क्वेश्चन, लाइक आई फील लाइक, या फिर ये पूछते हैं हाउ कैन आई मेक अ फॉर्म, है। सो दैट इज नॉट समथिंग दैट वी वांट आवर किड्स टू लुक इनटू। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड में आ गया, द रिस्पॉन्स वाज जनरेटेड ड्यू टू कंटेंट मॉडरेशन, हमने इसको ब्लॉक कर दिया। तो अभी एज अ पेरेंट आप शाम में लौट के आते हैं, आपके बच्चे ने होमी में कुछ पढ़ाई करी है, सबसे पहले आपने चेक करना है सेफ्टी अलर्ट। तो अगर आप सेफ चैट अलर्ट में आते हैं, यहाँ पे रिव्यू फ्लैग क्वेश्चन में जाते हैं, तो जो जो मतलब फ्लैग होता है ना चैटबॉट पे, वो आपको यहाँ दिखेगा, वो डिलीट नहीं होगा। बट ये सारा चैट जीपीटी में, जेमिनाई में या फिर ग्रॉक में ये सारा डिलीट कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ पे एज अ पेरेंट आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे डिजिटल डिवाइसेस में क्या कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई आई टेल कि मेरा ट्यूटर डॉट ए आई इज 100% चाइल्ड सेफ एंड पेरेंट फ्रेंडली। सो यहाँ पे हमने इसको एक्नॉलेज किया। सो हम भी आप बच्चे के साथ बात कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, एंड देन यू एक्नॉलेज इट, तो ये फिर से यहाँ पे ग्रीन हो जाता है। आई होप यू आर स्टिल विथ मी, आई जस्ट टेक 5 more minutes। यहाँ पे देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग गोल्स। लर्निंग गोल्स में ये होता है कि बच्चे ने जितना टाइम पढ़ाई करी है, या फिर जितने क्वेश्चंस पूछे हैं, या फिर जितने पेजेस पढ़े हैं, वो सारा हम मेजर करके यहाँ पे दिखाते हैं, विच मीन्स कि वी आई, जैसे मैंने अपने बेटे को बोला है कि आपने एवरीडे 60 मिनट पढ़ाई करनी है, एवरीडे 20 क्वेश्चन पूछने हैं, एवरीडे 5 पेज कंप्लीट करने हैं। तो इससे क्या होता है, उसकी एक लर्निंग हैबिट बनती है, लर्निंग डिसिप्लिन बनती है। और जो बच्चा डिसिप्लिन्ड है, जिसके पास हैबिट है, वो काफी आगे निकल सकता है, राइट। सो दैट इज हाउ miratutor.ai will help your kid develop a habit of learning and inculcate a discipline of learning. एंड यहाँ पे ये जो लर्निंग रिंग्स है, दिस इज लाइक योर फिटनेस एक्टिविटी रिंग्स, आपने यूज करा होगा। इफ यू आर अवेयर ऑफ फिटनेस रिंग्स, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। वैसे ही यहाँ पे हमने लर्निंग को मेजर करने के लिए लर्निंग रिंग्स करा हुआ है। इफ यू लाइक दिस, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस। या, थैंक यू। सो नॉट ओनली दैट, अगर मैं जाऊं व्यू ऑल डेट्स को, ये मेरे बेटे का स्टडी पैटर्न जो है मैं देख सकता हूँ। जैसे सितंबर में उसने ये इतना इतना पढ़ाई करा हुआ है, और उसने अगस्त में या फिर जून में इस तरह से एंगेज किया हुआ है मेरा ट्यूटर में, और जुलाई में इस तरह से एंगेज करा हुआ है, या फिर अगस्त में इस तरह से एंगेज करा हुआ है, राइट। सो एज अ पेरेंट वी हैव टू नो कि व्हाट आवर चाइल्ड इज डूइंग, क्योंकि पढ़ाई एक दो दिन में नहीं होती है, एग्जाम से पहले नहीं होती है, पढ़ाई रोज होनी चाहिए। एंड उसको ट्रैक करने के लिए आपके पास मेरा ट्यूटर डॉट ए आई अभी है, जहां पे आप उसके आप बच्चे को एक हैबिट दिलवा सकते हैं टू पुट एफर्ट्स एवरी डे। अगर समर हॉलीडेज भी आ गए, विंटर हॉलीडेज भी आ गए, आपने उनको ये बोलना है कि मिनिमम 120 आवर्स आपने पढ़ाई करनी है, और फिर आप खेल लो, राइट। एंड दैट इज व्हाट विल सेट योर चाइल्ड टू ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। ओके। स्ट्रीक्स है बच्चों के लिए, तो वो एक स्ट्रीक मेंटेन करते हैं। जैसे मेरे बेटे का यहाँ पे 10 दिन का स्ट्रीक हो गया, वो कल भी करेगा ताकि उसका स्ट्रीक ना ब्रेक हो। ट्रेंड्स हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इस वीक बच्चे ने कैसा करा कंपेयर टू द लाइफ टाइम परफॉर्मेंस, राइट। सो ऑल दैट इज देयर। फाइनली यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, देर आर क्रेडिट्स। तो ये एक एआई सिस्टम है, इसको यूज करने के लिए वी यूज एआई टोकन्स, एआई क्रेडिट्स। तो हमारे सब्सक्रिप्शंस होते हैं, और ये जो मेरा सब्सक्रिप्शन है, इसमें 10 मिलियन क्रेडिट मुझे मिलता है हर महीने। एंड अभी उससे मेरा बेटा जो है 3.4 मिलियन यूज कर चुका है, इतने 6.5 अवेलेबल है। सो दिस इज द क्रेडिट सिस्टम। अगर आपको देखना है कि रोज क्रेडिट कितना यूज हो रहा है, यहाँ पे एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको मिलती है, आपको पता चलेगा रोज उसने कितने यूज करे हैं, कहाँ कहाँ यूज करे हैं, वो आपको पता चल जाता है, राइट। यहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकता है, कोर्स शेयर कर सकता है, उनसे कोर्स ले सकता है। इस तरह की चीजें हैं। यहाँ पे हेल्प में यूजर मैनुअल, हेल्प वीडियोस, सब कुछ है। आप व्हाट्सएप में हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इफ यू गो टू योर प्रोफाइल, यहाँ पे इफ यू गो टू सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे जिन्होंने भी आप में से फ्री अकाउंट लिया हुआ है, इफ यू वांट टू अपग्रेड, यहाँ यहाँ पे आके आप व्यू प्लान्स एंड अपग्रेड में आ सकते हैं। यहाँ से यू कैन बाय
a subscription, or you can touch base with Nitin and my team so that you can clarify any questions if you have to. Now with this, we are done with the demonstration. I will take some time to take you through few more things. आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए 5 minutes more, and I'll also be happy to take any questions if you have. These are some of the awards and recognition that MiraTutor.ai has won over the past few months in 2025. This is a brand new product, but we are a NASSCOM Excellence Awardee. We are a Economic Times Trendmaker Award, AI EdTech Startup, AI Innovation in Education, Best AI Product in Education, Best EdTech Product of the Year. ये awards हमें मिले हुए हैं for MiraTutor.ai. Not only in India, but we are also launching MiraTutor.ai at a global level in Dubai, UAE, Riyadh, Saudi Arabia, and then Seoul in South Korea. That's me and my team, where we are launching MiraTutor.ai. And MiraTutor.ai, as I speak, we have 50,000 users already using the system. And these are some of the pictures of the awards that we have won, where we have Mr. Piyush Goyal and Kiran Bedi, जो इसमें आपको बता रहा था. If you go on Perplexity and try to do a search for best AI tutors in India, we are one of the top recommended platforms on Perplexity. We are also being recommended on ChatGPT. Pricing पे आते हैं. We start at 499. The starter pack starts at 499 a month, but only gives you 1 million credits a month. हर महीने आपको 1 million credit मिलेगा. Pro pack is 999 per month, जहाँ पे आपको 5 million AI credit मिलता है. If you are starting out, I would recommend all of you to go for the Pro pack, which is 999 a month. And then the ultimate, जिसके grade 11, 12, 10 में है, बहुत सारे practice paper generate करने हैं. Go for the ultimate, which is 10 million a month. मेरे बेटे के लिए I use 10 million a month. So that is like the 1499 a month आपको pay करना होता है. But that is the monthly pricing. Let me show you the annual subscription. The annual subscription is a great deal क्योंकि यहाँ पे आपको only 10 months का पे करना है and 2 months free होते हैं. So basically, if you go for the starter pack, you will get 4990, where you are only paying for 10 months and 2 महीने free हो जाते हैं. So you are like saving 2 महीने का cost you are saving when you are going for the annual pack. Pro will only cost you 9990. 9990 में you are paying for 10 month, 2 month free हो जाता है. And then ultimate is again same, 14990 for 10 month, and you get 2 months free. But all the parents who have joined today's workshop, I also have another great deal for you. Please बने रहिए. तो यहाँ पे ये स्पेशल ऑफर हमने चलाया हुआ है फॉर आवर वर्कशॉप अटेंडीज ओनली. ये आपको हमारे वेबसाइट पे नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा. You can use the coupon code workshop20. It will only work on annual subscription purchases. तो अगर आप annual subscription लेते हैं और वहां पे workshop20 आप यूज करेंगे, then we are giving you an additional 20% off on that package, which means कि अगर आप उसको लेते हैं तो आपका इफेक्टिव प्राइस कुछ इस तरह से दिखेगा. ये कूपन वैलिड 22 सितंबर तक ही है, विच इज लाइक कमिंग मंडे. आपके पास टाइम है, आप ट्राई कर सकते हैं, सिस्टम को आप ले सकते हैं. तो यहाँ पे स्टार्टर जो है, जो कि मंथली 499 मैंने आपको बताया, इट विल कॉस्ट यू ओनली 333 अ मंथ. प्रो विल कॉस्ट यू 666 अ मंथ कंपेयर टू 999 पर मंथ. एंड अल्टीमेट जो कि 1499 का था, उसका कॉस्ट हो जाता है 999 पर मंथ. सो प्लीज टॉक टू माई टीम, दे कैन गाइड यू कि आपको ये डील्स डिस्काउंट किस तरह से मिलेंगे. हमारा वेबसाइट नीचे है, व्हाट्सएप या फिर कॉल के नंबर्स भी नीचे हैं. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. So I hope that everybody is clear with what I explained. जाने से पहले I want to show you, ये हमारी एक यूजर है कशिश, and she has been using MiraTutor.ai. We do a lot of good work. So यहाँ पे जो गर्ल है कशिश, she is I think grade 11 या grade 12 में है. तो वो काफी, मतलब आप देख सकते हैं कि every day she is like chatting on MiraTutor.ai. उसका पर डे का जो चैट वॉल्यूम है वो इनसेन है, लाइक 120 क्वेश्चंस, 273 क्वेश्चन, 695 क्वेश्चन, एंड ऑल्सो टेकिंग नोट. सो दैट इज द राइट वे टू यूज MiraTutor.ai.
उनकी जो पेरेंट है वो मुझे कहते हैं वो दिन भर कहीं नहीं जाती, शी ओनली स्टडीज एंड शी इज ऑन होमी एंड शी इज सेटिंग हरसेल्फ ऑन द path to great success, that I can say. Definitely, please try miratutor.ai for your children. उनको समझाइए इसको कैसे यूज करना है, आप ट्रैक करिए। बाकी कोई आपके क्वेश्चन है, आपको गाइडेंस चाहिए, इस तरह का वर्कशॉप चाहिए, आई एम देयर टू हेल्प यू, आई विल बी देयर। इफ यू जॉइन miratutor.ai, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ पेरेंट्स जो कि अपने बच्चे को हेल्प करना चाहते हैं पढ़ाई में, एंड हम आपको गाइड करेंगे। काव्या जी, आपने पूछा इज देयर एनी ऐप। सर मैम, ये फोन पे, टैबलेट पे एंड वेब पे चलता है, बट ऑन वेब चलता है, सो देर इज नो ऐप, दिस इज अ वेब ऐप, राइट? तो फोन पे भी ये चलेगा, फोन पे कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड है, आपको फोन पे इसको वेब पे खोलना है और ये कंप्लीटली चलेगा, राइट? तो अगर कोई पेरेंट ऐसे हैं कि आपको फोन पे ही चलाना है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक क्रोम बुक खरीद के अपने बच्चे को दे दो। फोन का स्क्रीन बहुत छोटा होता है, नंबर वन। नंबर टू, फोन में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। एक क्रोम बुक 14-15 thousand का आता है फ्लिपकार्ट पे, आई सेंड यू द लिंक, आई आस्क माई टीम टू सेंड यू द लिंक। एसूस का आता है 14-15 thousand का क्रोम बुक, आप उनको लाके दीजिए, जहां पे वो मेरा ट्यूटर डॉट ए आई को बहुत कंफर्टेबली चला सकते हैं, उनके आंखों में स्ट्रेन नहीं आएगा। एंड प्लीज फोन बच्चों को मत दीजिएगा, प्लीज। तन्वी जी, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज टेल मी मैम। Sir, can you hear me? Yes, ma'am, I can hear you. So just one question, like, does the tutor have voice access? Because if my child wants to understand something which is based on voice for betterment, is it possible? मैम, अभी तक ना हमने वॉइस दिया नहीं है, क्योंकि हमें लगा कि जो मिनिमम बेयर रिक्वायर्ड थिंग्स है बच्चों के लिए, वी शुड लॉन्च दैट। तो बट इफ पेरेंट्स टेल मी कि नहीं वॉइस चाहिए, हम आगे को वॉइस लॉन्च कर देंगे। आई एम वेटिंग फॉर सम इनपुट्स फ्रॉम पेरेंट्स। तो लाइक आई अंडरस्टैंड यू, आई कॉल यू, आई ट्राई टू सी कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है वॉइस की, एंड वी कैन वर्क ऑन दैट। सो Yes, especially I think it will be helpful for maths subject because maths is something like that which cannot be memorized. So if there is a proper explanation in voice, it would be far better than just reading and understanding. जैसे कि मैंने कहा मैम, रीडिंग में ना ब्रेन काफी यूज ज्यादा होता है, अब फिर भी यू कैन टेल टू, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि योर चाइल्ड इज लाइक ओनली ग्रेड 5, तो अभी 1-2 साल Hmm. लगेंगे टू रीच दैट पॉइंट। सो फॉर यस, फॉर यंगर किड्स वॉइस इज बेटर, आई एग्री। Okay, sir. Thank you so much, sir. सो पेरेंट्स ऑन द कॉल, किसी को और कोई भी क्वेश्चन है वो आप अभी पूछ सकते हैं, आई बी हैप्पी टू आंसर। जैसे ही यू जॉइन द मेरा ट्यूटर डॉट ए फैमिली, वी विल वेलकम यू टू द व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आई कीप पोस्टिंग थिंग्स। किसी दिन हो सकता है मैं वीडियो भी बना के भेज दूँ, जहाँ मेरे को समझ में आता है कि मैंने ये अपने बेटे के लिए यूज किया, मैं आपको भी भेजूंगा, आई शेयर इट। लेट्स ऑल जॉइन टुगेदर एंड मेक आवर स्टूडेंट सेल्फ लर्नर्स, independent learners, and make them confident learners. So with that, I think if people don't have a question, so somebody is raising a hand. Okay, ma'am, Tanvi ma'am was raising a hand. Sir, sorry. No, One more question related to math only. If I upload a proper method of my child, which she has done in her notebook and which is relevant to the school method, will the AI be able to detect and then explain her if she has, somehow missed? yeah, that's a wonderful question. So the question is ki, if the child is writing something, so let's say there's a question and the child wrote the answer to that, or there's a letter the child wrote, and you upload it to Mira Tutor. Will the tutor be able to correct it or provide guidance? The answer to that is yes. You can try that. So let her Oh, write, that's wonderful. take a picture, upload it, and it should be able to guide it. मैं इसको try Oh, that's करूंगा. Yeah. yeah. So that's wonderful, sir. That's really wonderful. Thank you, sir. Thank you so much. मैम, आप थोड़ा वेट करिए, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू लॉन्च द वर्कबुक सेक्शन, जहाँ पे हर चैप्टर का वर्कबुक will be there. CBSE, IB, ICSE, you will be able to launch workbook on Mira Tutor, and after that Wow. we will also launch the ability to correct answers on using AI on miratutor.ai. तो ये सारा फीचर मैम लाइंड अप है, तो मैक्सिमम 1 to 2 months में ये हम लॉन्च कर देंगे। Great, sir. Great. Thank you, sir. So I think we are all good. I will just launch a poll here, and ये हमारा feedback होगा. You should be able to see
फीडबैक फॉर्म, आप प्लीज उसको फिलअप कर दें सो दैट मुझे पता चले कि हाउ डिड यू लाइक द प्रोडक्ट एंड ये वेबिनार आपके लिए यूजफुल था या नहीं, या फिर आपके जो भी फीडबैक है आप उस पर लिख दें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आई वेट फॉर योर फीडबैक। Please fill up the feedback, and you all have a great night. And thank you so much for joining this call. Please try to fill up the feedback. Yeah, I'm already seeing people trying to fill up the feedback. If you like today's session, if you like the product, please एक thumbs up या फिर एक तालियां एक भेज दीजिए, हमें बहुत हेल्प होती है उससे। Any question, please reach out to my team. They are very good guys. They'll help you on board, and we are, looking forward to have you in the miratutor.ai family. क्योंकि आप लोग हमारे साथ काम करेंगे, आप प्लीज स्प्रेड द वर्ड अबाउट अस। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनको miratutor.ai के बारे में बताएं, क्योंकि this can really, change the way our kids learn, and it can make lives of parents stress free. Thank you so much for filling up this feedback. I really appreciate all the parents who are taking time to provide a feedback to us. It is really helpful. A very good night to all of you and have a great weekend. Thank you so much for joining.